Hello friends, I'm really excited to welcome you again for yet another day of youth meeting. A very good afternoon to each and every one of you who are listening to us, who are following us and who are part of this youth meeting. आज का youth meeting हम शुरू करेंगे, but now the lockdown has been extended. So Grace, what do you think about this? Yes, lockdown has been extended. Nothing can be done about this. That's true. Yeah. That's true. But as we can see, the disease is also spreading very fast. So I think government has taken the right decision. Absolutely. And we should also contribute in our parts. And जो भी government की तरफ से हमको instructions time to time मिलते रहते हैं, उसको हम लोग properly follow करते रहें. और पर एक बात है, इस टाइम में एक चीज़ बहुत अच्छी यही है जो हम लोग पहले भी सोच रहे थे कि हम सभी यूथ मेंबर्स के जो भी हिडन टैलेंट्स हैं वो इस टाइम में बाहर निकल के आए हैं. Exactly. तो उस चीज़ को देखते हुए बहुत खुशी हो रही है और हम लोग सब मिलकर यही ट्राई करें कि हम लोग इस टाइम में पॉजिटिवली रहें और एक दूसरे को एनकरेज करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहें. Yeah, so it means let's not focus on the lockdown situation. Let's not think है ना हमें ऐसा बंद कर दिया या अभी क्या हो गया. Let's not be going on that side of the things. Let's think and let's involve on the happening side. जो हो रहा हमारे साथ उसके ऊपर हम ध्यान लगाएं. Many things are happening. Many of you are doing lot of things that we have not been able to do so far in our life. बहुत बिजी हो चुके थे हम, बहुत सारे चीज़ हम नहीं कर पा रहे थे. बट आज हमारे पास टाइम है, हमारे पास मौका है, and we are doing it. Everyone is getting involved in something or other. Online singing competitions चल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा. So it's a lockdown situation, but the things have opened up in many ways. हम खुल गए बहुत तरीके से देखना है तो. So let's take the positive and let's move forward, right? So it's not a motivating message what I'm giving. Then let's be practical. Let's be practical about the things that is happening around us. So with that note, let's go forward with our youth meeting. So it's time for a song, time for worship, time for praising our God. So let's move forward and let's have a time of worship, of praising and magnifying the name of our Lord. Let's move forward in worshiping the Lord. हमने आज जो गाना चूज किया है संग तेरे गाना है, जो हमने यूथ मीटिंग में भी हमने पहले गा चुके हैं. It's a song that we all know. It goes like this. ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा. शैतान को यीशु आपने हरा दिया, पापों को मेरे अंदर से जड़ से आपने उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नया गीत से, मैं अभी जी उठा नई शक्ति से. लॉर्ड, I will not leave you, Lord. पीछे नहीं हटूंगा मैं. आपने मेरे लिए क्या क्या किया है. आपने शैतान को हराया, आपने मेरे जीवन में एक उम्मीद दिया है. You have helped me to move forward. You have surrounded me with your presence, Lord. And I will not leave you. पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता ही रहूंगा संग तेरे. Lord, when you are with me, lockdown is not a problem for me. The mountains that is standing in front of me is not a problem for me because I don't focus on that. I focus on you, संग तेरे. आपके साथ जाने में मैं और कुछ देखने वाला नहीं हूँ. पीछे नहीं हटूंगा परमेश्वर, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता ही रहूंगा आपके साथ साथ. आइए हम साथ मिलके गाएंगे. Let's make a commitment as we sing the song. Let's say, Lord, I will not get back. I will keep on moving. Let's sing together. ये कैसा प्यार है तेरा. घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से.
तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ये कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नई रीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। As we just sang, let's take this time in the presence of the Lord. Let's say, Lord, मेरे सामने कुछ भी आने दो, मेरे चारों ओर कुछ भी होने दो, मैं उसके ओर मेरा आंखों को लगाऊंगा नहीं Lord. I would like to focus on you. मैं पीछे नहीं हटूंगा परमेश्वर, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, whatever be the situation, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अगर आप मेरे साथ रह सकते हैं परमेश्वर, मैं किसी चीज़ का भी डरने का जरूरत नहीं है। I just have to keep on moving forward. I just have to keep on moving forward. Oh, let's tell our Lord, Lord, I want to walk with you. मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, संग तेरे, आपके संग मैं रहना चाहता हूँ परमेश्वर, ताकि I don't get stuck with any situation in my life. I just keep moving forward. मुझे आपकी मदद चाहिए. Let's pray. Let's commit our lives into the presence of the Lord. Let's renew our commitment of walking with Him forever, for every second of our life. उनके साथ चलने का हमारा डिसीजन को एक बार फिर हम रिन्यू करेंगे परमेश्वर के समुख में. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given us, Master, to be in your presence. As we just sang, Master, Lord, आपने कितना प्यार किया कि आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया परमेश्वर. You gave away everything that you had, Master. Jesus, you left your heaven, the glory of heaven, and you came down to this earth to save me, a sinner, Lord. मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए, जब मैं पाप में था परमेश्वर, आपने मुझसे इतना प्रेम किया कि आपका स्वर्ग छोड़ के आप नीचे उतर के आ गया परमेश्वर. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर. Lord, you surround me with your presence, Master. Lord, you help me in each and everything, Lord. You have defeated Satan and you have been victorious, Master. And if I can walk with you, Lord, I can also be victorious in my life, Master. मैं मेरे जीवन में विजय पाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर. आपके संग रहने से मैं विजय हासिल कर सकता हूँ. Lord, I pray that, Lord, मैं कभी भी आपको छोड़ नहीं सकूँ परमेश्वर. मेरा कुछ भी सिचुएशन हो मेरा लाइफ में, let me always stick on with you, Lord. Let me always walk on with you, Master. Let me be on with you, Master, because there is hope in you, Master. There is strength in you, Master. My future is in your hands, Master. Thank you, Lord, for listening to our prayers, Master. Help me to walk with you daily, every second of my life, Master. As we move forward to listen from the Word of God, we pray that, Lord, you minister unto our hearts. Talk to each and every one of us so that Word may bring fruits in our life, Master. Thank you, Lord, for listening to our prayers. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. 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 Let's move forward with the Word of God. हम वचन से थोड़ी देर हम मनन करेंगे. And I'm back to the favorite book, that is Genesis. तो आज हम Genesis से कुछ पद हम देखेंगे. And it's a story that we all know, famous. Genesis is a book of stories, lot of stories, and each and every story we have been learning from childhood. तो हमें बहुत अच्छे से पता है ये story, but then to revisit, it's really good to learn, to relearn. It's really exciting. So let's come to the book of Genesis, chapter 25.
जेनेसिस चैप्टर 25, हम 29 से 34 में जो घटना है वो हम देखेंगे. इट्स अबाउट जेकब एंड ईसाव. ओके, याकूब और ईसाव के बारे में वो घटना है, वो हम अच्छे से जानते हैं. एक दो वचन हम पढ़ेंगे तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अस. सो आई एम रीडिंग फ्रॉम जेनेसिस चैप्टर 25 and verse 29. Once when Jacob was cooking stew, Esau came in from the field and he was exhausted. So, हिंदी में भी मैं पढ़ता हूँ. एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया. You know that Esau was good in hunting. He went for hunting. तो उनको hunting में कुछ मिला या नहीं मिला उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, बट जरूर ये लिखा है कि वो थक गया. वो बहुत थक के आया था. He came very tired and exhausted and he was literally down. बिल्कुल वो physically down हो गया था और वो थके हुए आया था. And he saw Jacob sitting and making something. And almost मुझे लग रहा है कि उसमें से बहुत अच्छे से खुशबू आ रहा होगा. वो बॉयल हो रहा है. हिंदी में लिखा दाल पका रहा है and इंग्लिश में it says stew, red stew. So we don't know whether it was a veg or a non-veg. तो उसके अंदर नहीं जाए हम. But कुछ भी हो, it was cooking something and it was boiling and the smell was coming and ये already ये तका भी था. So सामने से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है और ऑलरेडी आप तके हुए थे, आपको लग रहा है कुछ आपको तुरंत खाना चाहिए. सब मैं ऐसा भी सोच रहा था शायद वो कुछ हंट करके लेके आया था, बट अभी कौन बैठ के पकाएंगे, तक गया. बाइबल में नहीं लिखा, मैं सोच रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट इमेजिनिंग शायद उनको कुछ मिला तो अभी टाइम नहीं है, उसके बाद बहुत भूख लग गया, टाइम नहीं है, तो ही वांटेड दिस फूड. या मे बी उनको कुछ मिला भी नहीं, तक गया, वो आया है, वॉट एवर बी द सिचुएशन, नाउ ही वांट्स फूड इमीडिएटली. तो वो आया और जेकब से बोला, जेकब वॉट एवर यू आर कुकिंग, थोड़ा सा मुझे दे दे, मुझे अभी चाहिए, आई नीड इट नाउ. 31st वर्स में पढ़ता हूँ. जेकब से एंड ईसाव ने उनसे पूछा, and Esau said to Jacob, 30th verse में, let me eat some of that red stew for I am exhausted. तो उन्होंने बोला मुझे कुछ दे दो, अभी दे दो, आपके खाना जो आप पका रहे हैं मुझे दे दो. Jacob immediately said, sell me your birthright now. 31st verse, याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे. Jacob was looking for an opportunity, maybe. बट अभी जब उनको अपॉर्चुनिटी मिला तुरंत उन्होंने बोला, अभी आपको क्या करना है, आपके पहलौठा होने का अधिकार को बेच दो. सेल मी योर बर्थ राइट एंड आई विल गिव यू दिस फूड. एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड दैट एसाव वाज नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस क्वेश्चन. एसाव ये मतलब जब जेकब ने बोला बर्थ राइट दे दो, एसाव के अंदर कुछ ऐसा नहीं लगा कि क्या यार ऐसा कैसे पूछ लिया आपने, ऐसा कैसे मांग लिया. आई एम द फर्स्ट बॉर्न, मुझे वो अधिकार है. फर्स्ट बाय द वे फर्स्ट बॉर्न का राइट्स क्या है, ऐसा है कि व्हेन द प्रॉपर्टी इज बीइंग सेटल्ड, ऐसा करते हैं कि इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं. एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ डैडी को जो भी है पूर्वज का प्रॉपर्टी को 3 भाग में डिवाइड करते हैं. 2 parts दे गिव टू द फर्स्ट एंड 1 part दे गिव टू द सेकंड. या कितने भी बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे हैं उसको 11 अंक में बांटेंगे. दे डिवाइड इट इनटू 11 parts. 2 parts go to, मतलब एक एक्स्ट्रा पोर्शन देते हैं फर्स्ट बॉर्न को. सो दैट वाज द राइट ही वाज टॉकिंग अबाउट. तो नाउ एसाव, जेकब सेज सेल मी योर बर्थ राइट एंड एसाव वाज लाइक हाँ ओके टेक इट. तुरंत यू नो 32nd वर्स हम पढ़ेंगे. एसाव सेड आई एम अबाउट टू डाई, ऑफ व्हाट यूज इज बर्थ राइट टू मी. ये मैं अभी मरने जा रहा हूँ यार, मैं भूख से मरने जा रहा हूँ, मुझे अभी ये पहलौठे होने का अधिकार से क्या मतलब है. I don't want that. He just despised. उनके पास एक अधिकार है. He has a blessing. He had some good things in his. मतलब वो बड़े होते when he inherit, he would inherit 2 times more than Jacob of his father's property. But एक टाइम का खाने के लिए वो अपने आशीष को ऐसे ही बेच दिया. He despised his blessing. You know, बाइबल में बहुत सारे चीजें लिखे हुए हैं कि God chose Jacob and not Esau. हम सबको पता है परमेश्वर ने याकूब को चुना और एसाव को नहीं चुना. But then the birthright did not belong to Jacob, it belonged to Esau. ध्यान देने वाले बात है. परमेश्वर ने याकूब को चुना वो तो सही है. That was for a different reason. जेकब को इस्राएल बनाना था. That was God's focus on his life. But उसमें ये बर्थराइट एसाव का बर्थराइट एसाव का था.
It was Esau's birthright. It was his blessing. But उनका ध्यान कहाँ पे गया? उस समय उनका जो जरूरत था वो किसके पास दिखा? जेकब के पास दिखा. He wanted to take that. He wanted to get that. In that trial, he missed or he despised his own birthright. उनका आशीष को उन्होंने खो दिया जब वो दूसरे का शीशों को देखने लगा. So my focus was this. मैं देख रहा था how easily he gave away his birthright. उनका जो आशीष को कैसे वो ऐसे उन्होंने दे दिया उठा के. मतलब he was not serious about what he had, but he was serious about what Jacob had. Jacob के पास जब वो एक समय का खाना पक रहा था, उनको वो अच्छा लगा. किससे ज्यादा अच्छा लगा? अपना बर्थ से, अपना पहलौठे होने का अधिकार से. उनका वो बस एक समय का खाना. आपको पता है खाना कैसा है? हमें भूख लगता है, एक बार खा लिया, भूख मिट गया, भूख खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया. जो खाया सब कुछ हम भूल जाते हैं. इट्स डन एंड डस्टेड. बस उस समय का एक 5-10 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, इसके लिए अपना लाइफ का ब्लेसिंग उन्होंने खो दिया. He just left it. He just despised this. न्यू टेस्टामेंट में एक वचन इसके बारे में लिखा है. Hebrews chapter 12 एक वचन लिखा है, 16th verse. Hebrews chapter 12 verse 16. It says that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal. हिंदी में लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला. एक समय का भोजन के लिए आपका पहलौठे होने का अधिकार को बेच दिया. ऐसा एसाव का जैसा नहीं बनना है. Don't become like this unholy Esau. That's what the Bible says. आगे, for you know that afterward, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no chance to repent, though he sought it with tears. बाइबल में लिखा है, 17th verse हिंदी में पढ़ता हूँ, सुनो. तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला. समझ में आया आपको? He despised his birthright, and then later when he wanted it, when he wanted his blessing, he was rejected. उनको नहीं दिया गया. It happened with him. जो उनका आशीष था उसको उन्होंने अनदेखा कर दिया, उसको डिस्पाइस कर दिया, और वो खो दिया, वो बेच दिया. And finally when he wanted it, with tears he tried. कुछ भी नहीं हुआ. He lost it forever. My dear friends, मैं जब पढ़ते वक्त मैं यही सोच रहा था, Jacob had a different plan of God. Esau, maybe he was not supposed to be like Jacob, but then he had his own blessings. उनका अपना खुद का आशीष था. Why should you lose that? वो क्यों आप बेचना चाहते हो? उसको क्यों आप खोना चाहते हो? Let Jacob be Jacob and let you be you. मैं इसको अलग तरीके से देख रहा था. There are a lot of spiritual meanings you can take regarding this. There are a lot of doctrines you can take regarding this. But my focus didn't go all there. मैं practically यही देख रहा था. Jacob रहने दो, एसाव रहने दो. Jacob का blessing Jacob के लिए, एसाव का blessing एसाव के लिए. Why should Esau sell his birthright? Why should he despise his blessings? My dear friend, your life is special. My life is special for me. Your life is special for me. आप मैं नहीं बन सकता और मैं आप नहीं बन सकता हूँ. मेरे आशीष अलग है, आपके आशीष अलग है. डेविड को परमेश्वर कुछ अलग चीज के लिए बुलाया. जोसेफ, मैं जिस जोसेफ की बात कर रहा हूँ, द फादर ऑफ जीसस, यीशु मसीह का पिता, यूसुफ के बारे में बात कर रहा हूँ. उनका रोल बिल्कुल अलग था. But he had a role of his own. Now this New Testament Joseph cannot try to become the Old Testament Joseph. ये नया नियम का यूसुफ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पुराना नियम का यूसुफ जैसा बनना चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए. No. Let his blessing be his. Let your blessing be yours. उसको रखना है. Whatever God has made you, whatever God has given you, उसको आपके हिसाब से रखना है उसको. Let's not see into what others have.
what is cooking in others plate. Normally यही होता है ना, दूसरे के प्लेट में क्या है नजर वहां जाता है. हमारे घर पे मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बना के देते हैं. जब स्कूल में जाते हैं, दूसरा टिफिन बॉक्स खुलते ही हमारा मन, हमारा आंख वहीं पे जाता है, क्या लेके आए, क्या लेके आए. और दूसरों का मम्मी का खाना हमें बहुत टेस्टी लगता है. इट हैपेंस ना. ऐसे ही हमारे लाइफ के साथ भी हम करते हैं. वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अदर्स अफेयर्स. वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अदर्स ब्लेसिंग्स. वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज कुकिंग इन द लाइफ ऑफ अदर्स. वो छोड़ो. लेट एसाव बी एसाव. मैं बाइबल पढ़ते वक्त मतलब आई हैव लिसन टू मेनी मैसेजेस एंड इवन समटाइम्स आई हैव आल्सो प्रीच्ड इन द अर्लियर डेज लाइक डेविड के जैसे बनो, जोसेफ के जैसे बनो, पौलुस के जैसे बनो, बिकम लाइक दिस, बिकम लाइक दैट. मैं अब रियलाइज करता हूँ आजकल ऐसा बनने का जरूरत नहीं है. डेविड इज डेविड, सॉल इज सॉल, पॉल इज पॉल, डैरिल इज डैरिल. मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे मेरे तरफ बनाना चाहते हैं, किसी और के तरफ नहीं. और मेरे लिए उसके लिए अलग से ब्लेसिंग्स दिया है. मुझे लगता है नहीं यार, इट डजंट सूट मी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये छोड़ना चाहिए, बट मुझे वो चाहिए. आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस. मुझे लग रहा है अब एट दिस प्रेजेंट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका इसमें प्लेट में जो पक रहा है, जो खाना पक रहा है, मुझे वही चाहिए. आई वॉन्ट दैट. गॉड सेज, माय डियर सन, आई डिडंट मेक यू फॉर दैट. You be yourself. क्योंकि एक समय आएगा हमने खो दिया, फिर हम खोजेंगे तो भी वो शायद नहीं मिल पाएगा हमारे जीवन में. Esau ended like that. I don't want it to happen in your life, in my life. God has a specific purpose for each and every one of you. आप हर एक के लिए एक अलग उद्देश्य परमेश्वर रखा है. Let us live for that. जब हम उसके प्रति हमारे आशीष के ऊपर फोकस रखेंगे, God will use us. He will bring us in the way that He had put us to be. He has intended us to be. हम कैसे बनाना है वैसे जैसे परमेश्वर ने सोचा है, उसी तरह परमेश्वर हमें आगे लेके बढ़ाएगा. Otherwise, if you are going to focus on what is happening with others' life, what is cooking in others' plate, maybe we may get that. But जब हमारा को दिया किसी और के लेके हाथ में रखे हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है. उनको तो खाना मिल गया था, भूख मिट गया था उस समय का, उस एक समय का भूख मिट गया था बस. बट ही लॉस्ट द ब्लेसिंग ऑफ हिज लाइफ. उनका पूरा जीवन का आशीष उन्होंने खो दिया. सोच के देखो, अगर उनको पापा का डबल पोर्शन मिला होता, हाउ मच मनी ही वुड हैव हैड, how many servants he would have had, how many times he could have made the same food and eaten. कितने बार वो यही खाना बना के या बनवा के वो खा सकता था. एक समय का खाने के लिए पूरा जिंदगी का आशीष उन्होंने खो बैठा. And Bible tells, don't be like Esau. Don't be like Esau, who has sold, who has despised his blessing. Find out the blessing that God has given you. जैसे हम पहले भी बोल रहे थे, इस लॉकडाउन का सिचुएशन में आजकल सब लोग अपने अपने घर पे बैठे, यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ, यू आर नोइंग योरसेल्फ, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड. नो योरसेल्फ. आपके जीवन में जो परमेश्वर आशीष दिया है उसके प्रति फोकस रखो. किसी और को मत देखो, किसी और के लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है, उनके जैसा बनना है, नहीं. ये सारी बातें छोड़ो. परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर के संग चलो. Know your blessings, stick on with it, because God has made you perfectly unique and there is no one like you in this entire world. आपके जैसे कोई और है ही नहीं. मगर sadly we all are trying to become someone like someone else. हम सब किसी और के जैसे बनने का उस दौड़ में हैं. हम वो सब बंद करें, वो सब बंद करें. Find yourself. Let me find myself. Let me take my blessings. Let me inherit my blessings. Let me keep my blessings. Let me not despise my blessings. जो टैलेंट्स परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो फैमिली परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो असेट्स परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया वो मेरा है, वो मैं लेके आगे बढ़ने दो. So that it will be a real blessing and that will stay with me for my entire life. So this is
नॉट अ बिग मैसेज, बट मैं ये पढ़ते वक्त मेरे मन में यही आया, लेट्स स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट इज कुकिंग ऑन अदर्स लाइफ, लेट्स बी सीरियस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर ओन लाइफ्स। हम हमारे लाइफ को लेके हम सीरियस हो जाएं परमेश्वर के सम्मुख में। गॉड कैन गिव यू, मेक यू टू बी योरसेल्फ। आपको आपके जीवन के साथ जैसे जीना है वैसे जीने का अनुग्रह परमेश्वर देगा, एंड दैट विल बी अ रियल ब्लेसिंग। क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव व्हेन वी स्टैंड बिफोर गॉड टू गिव अकाउंट ऑफ अवरसेल्फ, हमारे लाइफ के बारे में जब हम अकाउंट ये परमेश्वर को देना है उनके सामने खड़े होके, देयर विल बी नो वन टू कम एंड असिस्ट यू, यू विल हैव टू स्टैंड गिविंग एन अकाउंट ऑफ योरसेल्फ। वहां जाके हम नहीं बोल सकते परमेश्वर मुझे लगा कि ये व्यक्ति अच्छा है तो मैं इनके जैसा बन गया, अब कैसा लग रहा है? God will say, look at you, I made you unique to be like this. But आपका खुद का पहचान छोड़ के किसी और क्यों बनना चाहते हो? Be yourself. आपका पहचान रखो, आपका पहचान बनाओ, आपका पहचान को ढूंढो, खोजो, आपके आशीषों को ढूंढो और उसको पहचानने के बाद उसको आपके पास रखो, work on it. With the help of God, you will be a blessing. You will be a blessing. There is no one like you in this entire world. I say it again. आपके जैसे इस पूरे दुनिया में कोई और है ही नहीं. Stop trying to become someone else. Stop trying to imitate someone else. Stop trying to see into others' life. Be content with your life. Go forward with your Lord. Your life would be a blessing. Shall we close our eyes, my dear friends? हमारा आंखों को बंद करेंगे. I don't know to whom is my words ministering, because there are many people who are listening to me through this YouTube link. इस YouTube link के द्वारा बहुत सारे लोग मेरे आवाज़ सुन रहे हैं और मुझे पता नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, बट मुझे ज़रूर पता है कि जब मैं परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन में इतना ताकत है कि ये आपके दिलों में बात करें। I may be talking to you, but the word of God is talking right to you, to your hearts, ministering unto your hearts. आपसे परमेश्वर के वचन बात करें। तो let's give it into the presence of the Lord. हम परमेश्वर के सम्मुख में दें, हमें एक बार फिर परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करें, हमारे जीवन को उसके सम्मुख में अर्पण करें। Tell him, Lord, you have given a lot of blessings in my life, and let me not despise that. Let me keep on to it. मेरे जीवन में जो भी आशीष आपने दिया है, वो मैं रखने के लिए, उसके प्रति मैं काम करने के लिए मुझे आदत है। Let us pray and submit ourselves. Our loving Heavenly Father, we thank you for this beautiful day that you've given us. We thank you for the beautiful word that came unto us, Master. आपने हमसे बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबके जीवन में आपने एक एक आशीष दिया परमेश्वर। You have made us uniquely to be us. But we at times are focusing on many other things and losing the point of focus in our own lives, Master. आज से हमें अनुग्रह दे कि हम किसी और के जीवन के ओर हम फोकस ना रखें, हमें खुद को देखें, जो भी आशीष आपने हमें दिया है उसके प्रति हम हमारे फोकस को रखें। Let Esau be Esau and let Jacob be Jacob and let me be me. Let me not try to be someone else, Master. And thank you for loving me. Thank you for making me unique. Thank you for giving me this life. Thank you for putting me in this family. Thank you for giving me all these things that are around me, Master. Thank you for all the people that you've given around me. Thank you for making me me. And I pray that, Lord, let my focus be on that. And as I walk with you, I may get better and better with every walk. मैं आपके संग संग चलते हुए दिन प्रतिदिन आप में बढ़ने के लिए, मेरे आशीष में बढ़ने के लिए, मेरे अनुग्रह में बढ़ने के लिए मुझे अनुग्रह देना परमेश्वर। Thank you, Lord, for listening to our prayers. Lord, we give this entire situation into your hands, Master. The lockdown has been extended, but still help us to take our eyes off the situation. Let us put our eyes on you. You have blessed us with a lot of time.
You've blessed us with a lot of talents. You've blessed us with family time. We pray that, Lord, help us to use this time in a better way. Let us not be complaining, but let us be rejoicing in the Lord, because the joy of the Lord is our strength. हमें अनुग्रह दे कि जब तक हम अगले बार नहीं मिले, तब तक आप अनुग्रह हर एक के साथ बने रहें, सबको सुरक्षित रखना, सबको संभालना, सबको आपके साथ, आपके संग संग आगे लेके चलना। Thank you, Lord, for listening to our prayers. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Thank you, guys. Thank you for being here to listen to this, to be a part of this youth meeting. We will continue as the lockdown has been extended in this same fashion. And until we meet next time, let God bless you and keep you all safe. Take care. Thank you. God bless you.